Hello everyone, good morning all of you. Welcome back to the channel. So let's start with the analysis for 7th of November. So here we see that governors delaying the crucial bills, it is a matter of concern. This is what is being said by the Supreme Court. Recently हमने देखा था कि Tamil Nadu Chief Minister, Kerala Chief Minister, they took this issue to the Supreme Court. So CJ asked why governments should be made to approach the court for governors to act. So he's saying कि governors कॉन्स्टिट्यूशनली एक्ट करने के लिए भी आपको सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के पास आना पड़ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? एंड ही एड्स कि मैटर्स दे मस्ट बी सॉर्टेड आउट बिटवीन देम एंड द चीफ मिनिस्टर्स. सो governors, they should not be oblivious of the fact that they are not elected by the people, although they are like appointed by the central government. So obviously they are a constitutional authority, they need to work as per the constitution, and this obviously comes under the cooperative federalism as well, so it is somewhere impacting that also. So here the Article 163 of the Indian Constitution specifies that the governor needs to act as per the aid and advice of the CM and the cabinet. So that article should be, self-realized by the governor the time he is doing all these kind of things. Yes. So जो थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी एग्जिस्ट करती है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 200 बोलता है कि द बिल नीड्स टू बी गिवन असेंट एज सून एज पॉसिबल, तो एक फिक्स टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है, तो दैट शुडंट बी मिसयूज्ड बाय द गवर्नर. So Punjab के केस में भी we see similar issue. The governor is sitting on 7 key bills which are related to subjects including the fiscal and the state affiliated colleges. So obviously it would be impacting the governance in different states at the same time. Mansi, I have a question to you that we have a convention in India, I think since the last decade or 2 decades, that the governor comes from a different state to serve in a state. For an example, the governor of Punjab comes from, let's suppose, Telangana or Hyderabad. Is it good to have such kind of convention post Punchi Commission? The reason being, what was the idea behind this convention? That he will not do the partisanship, but the partisanship is happening even now. And even the more important thing is the realization of the needs and the demands of the people of the Punjab will not be realized as it would have been realized by the person who hails from the Punjab and becomes the governor. यहाँ पे मेन रीजन ये था जो आपने बोला कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट इज अपॉइंटेड टू अ पर्टिकुलर स्टेट, मतलब उस स्टेट का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, आपने स्टेट को सर्व नहीं किया होना चाहिए, प्लस आपको पॉलिटिकली भी एक्टिव नहीं होना चाहिए, सर्टेन टाइम पीरियड एग्जिस्ट करता है उसके लिए भी. बट अगर हम ये इशू की बात करें तो जो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स के बीच में देखने को मिल रहा है, कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में हमें ये देखने को मिल रहा है, तो इसको हम जनरलाइज करके ये भी नहीं बोल सकते कि पार्टिसनशिप स्टिल विजिबल है इस केस में भी, अगर हम डिफरेंट रीजन से एक गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं एक स्टेट के अंदर, तो अगेन म्यूचुअल बेसिस पे इस चीज को रिजॉल्व किया जा सकता है. एंड दोनों लाइक गवर्नमेंट भी एंड गवर्नर भी कॉन्स्टिट्यूशनली दे नीड टू एक्ट, एंड मतलब दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ अगेन बिहेवियरल एस्पेक्ट की हम बात कर सकते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशनली इफ दे विल गो अल्ट्रावाइज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी ये अभी हमें देखने को मिल रहा है डिस्प्यूट या रोड ब्लॉक आप बात कर सकते हो, सो obviously then constitutionally if they will be violating, they would be going ultrawise the constitution, so then adequate steps would be taken up, उसके repercussions रहेंगे. No, the thing which you just said that it is not a generalized thing, it is very specific. So all the states where we have the different state governments of different political parties, which is not in the center, similar kind of things is happening. If we talk about Punjab, if we talk about Puducherry, if we talk about Delhi, if you talk about other states, so it is happening where the political party is changing. तो बिहेवियरल तो हो ही नहीं सकता है. अगर बिहेवियरल होता तो गवर्नर ये काम करते ही नहीं. मतलब आई जस्ट वांट अ जनरल एन अनकन्वेंशनल सॉल्यूशन फ्रॉम योर साइड.
नहीं, अनकन्वेंशनल का सोल्यूशन क्या होगा? इवन सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि दोनों को अपने बीच में इस चीज को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। जुडिशरी भी इस चीज को नहीं सॉल्व कर सकता, एज इन मतलब कि अगर ऑब्वियसली दिस इज लीडिंग टू ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन अ पर्टिकुलर स्टेट, तो वहां पे अगर आप जुडिशरी के पास जा रहे हो तो जुडिशरी क्या क्या रिजॉल्व करेगा, क्या आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा? तो म्यूचुअल बेसिस पे आपको इस चीज को सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि ऑफ लेट हमें ऐसे इंसिडेंसेस देखने को मिल रहे हैं ना। ऐसा तो पहले भी होता था कि कोई गवर्नर है, सेंटर में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, स्पेसिफिकली साउथ इंडियन स्टेट्स की आप बात करो, तो पहले तो ऐसे इश्यूज नहीं देखने को मिलते थे हमें ज्यादा। ठीक है, ओशिक आपका कुछ कहना है इसके ऊपर? So ओशिक इज नॉट अवेलेबल। नहीं नहीं सो प्रवेश, इसमें आप क्या बोलोगे? आप जो बोल रहे हो कि अनकन्वेंशनल सोल्यूशन इसका और क्या हो हेलो सकता है? ओके, सो मेरे हिसाब से जो गवर्नर है, अभी तक भी ये नहीं होता है कि जब गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है तो सीएम की कंसेंट ली जाए। वो बस एक रिकमेंडेशन के तौर पे बोला जाता है कि सीएम की रिकमेंडेशन भी, कंसेंट भी लेना चाहिए। उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट करो, या जब आप गवर्नर को अपॉइंट करते हो तो आप सीएम की भी कंसेंट मैंडेटरी तौर पर लोगे। उससे होता ये है कि अगर आप सीएम और गवर्नर दोनों का कंसेंट मतलब रहता है तो इस तरीके के फ्रिक्शंस नहीं देखने को मिलते हैं। पहली चीज ये, पूंची कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी कि पार्टिसनशिप नहीं होगा अगर दूसरी स्टेट से गवर्नर को बुलाएंगे, तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो पुंची कमीशन की रिकमेंडेशन अगर नहीं काम कर रही है तो व्हाट वी कैन डू, जो गवर्नर जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट से उसको बनाया जाए, ताकि उसको सोशो इकोनॉमिक नीड्स उसकी पता हो, और उसको ये पता हो कि अगर मैं ऐसे बेफालतू के बोटलनेक्स लगाता हूँ तो मेरे ही लोगों का नुकसान है। तो ही विल बी मोर सेंसिटाइज एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल। तो आई थिंक दीज टू आर दी स्टेप्स फ्रॉम माई साइड। एक तो सीएम का कंसेंट मैंडेटरी बेसिस पे होना ही चाहिए। सी, आपने एक जो चीज बोली कि गवर्नर के प्रवेश अपॉइंटमेंट हेलो के टाइम पे हेलो आप चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट Kaushik, you are करके not आप audible, so can you please raise your हेलो voice? हेलो हाँ, now और it's okay. हाँ, Yeah. you're clearly audible। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। you're audible। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एग्री विथ प्रवेश ऑन द मैटर, बट क्या ये प्रोटोकॉल में है कि सीएम का जो कंसिडरेशन है इसको लेना चाहिए मैंडेटरी? और मैंडेटरी तो नहीं। ये चीज़ के लिए लेजिस्लेचर का रोल इम्पोर्टेंट हो जाएगा फॉर पासिंग द बिल एंड डिफाइनिंग द रोल ऑफ द गवर्नर। ऐसे तो अभी नहीं है। तो आई थिंक वी शुड कीप दिस मैटर विद द सुप्रीम कोर्ट। वो डिसाइड करेंगे तो हम लोग बात कर सकते हैं उसको। जान अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया ना कि ये मैटर जो है दोनों को अपने आप में मतलब आपस में इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। अगर आप मतलब ये एक तरीके से इट इज नॉट पोर्ट्रेइंग ए गुड पिक्चर, अगर गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर पा रही है या फिर गवर्नर बिल को असेंड नहीं दे रहा है, देन यू आर गोइंग टू जुडिशरी आस्किंग फॉर क्या करना चाहिए, इसको कैसे रिजॉल्व करें। तो एक ऐसा काम कर सकते हैं जो मेरे हिसाब से अगर बोला जाए तो, कि जैसे फॉर एग्जांपल स्पीकर हैज टू गिव हिज और हर जजमेंट इन डिफाइंड पीरियड, टाइम पीरियड दैट इज 3 months रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन। वैसे ही गवर्नर के लिए भी एक टाइम पीरियड देना चाहिए कि विद इन हाँ दैट लिमिटेड टाइम पीरियड ही हैज टू डिसाइड। हाँ, इससे वही हाँ, जो बात कर रहे रोड ब्लॉक है वो कम हो सकता है। आर्टिकल 200 टाइम पीरियड की जगह इट मेंशंस एज सून एज पॉसिबल, सो वहां पे एक डिफाइंड टाइम पीरियड हो सकता है। So, गवर्नर की Kaushik, जो one subsequent question regarding this, that for an example, you are suggesting that there should be proper time frame for the governor to give the assent or to deny the assent to the bill of the state government. But that is happening under the Article 200. What about Article 201, where the governor reserves the bill for the president? Should there be also the time limit for the president also in the state bill? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट जो स्मॉल स्टेट होता है, तो प्रेसिडेंट के हिसाब से नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रेसिडेंट कैन टेक एनी टाइम टू डिसाइड ऑन द मैटर। एंड बट प्रवेश ऐसा भी regarding governor, I am saying that there should be time frame just like we have defined for the speaker. तो अभी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक टाइम फ्रेम हाँ इंट्रोड्यूस किया है। हम्म, सो आई वाज सेइंग कि जैसे प्रवेश बोल रहा था कि प्रेसिडेंट के लिए बिल्स को रिजर्व कर दिए जाते हैं, तो अगर आप सारे बिल्स को ऐसे रिजर्व करने लग जाओगे तो क्लियरली डिफाइन कर देगा, शो कर देगा कि आप अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हो, क्योंकि वो मतलब लॉजिकल रैशन नहीं होगा कि ऑब्वियसली आप हर बिल को प्रेसिडेंट के लिए अगर रिजर्व करने लग जाओगे, अगर एक प्रॉपर टाइम भी फिक्स किया जाता है। सो वो कहीं ना कहीं दिखाएगा कि अगेन आप कहीं ना कहीं कुछ एथिकली और नॉट carrying out your constitutional duties and responsibilities।
ओके, सो नेपाल में आफ्टर शॉक्स आफ्टर जो अर्थक्वेक देखा गया, मानसी या तो न्यूज़पेपर छोटा कर लो, प्रवेश छोटा मतलब किस, पूरा नहीं, प्रवेश का वीडियो ऑन था ना, अच्छा आप तो हम्म, उस पर आया था हम्म, प्रवेश आर्टिकल। वीडियो ठीक ऑफ, है ठीक है। ठीक है। सो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, दिस कैन बी लुक्ड इनटू, बाकी हम बात कर चुके हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। और क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, देन एडिशनल फ्रिस्किंग फॉर एयर इंडिया पैसेंजर्स, मतलब एयर इंडिया पैसेंजर्स के लिए ही एडिशनल फ्रिस्किंग क्यों? So passengers boarding Air India from Delhi, Punjab, they will undergo additional security frisking according to the Bureau of Civil Aviation Security order issued on Monday following the release of a new video by designated terrorist Gurpatwant Singh Pannum. He is the founder of the band Six for Justice. So Air India के लिए नहीं, फिर ये सब एयरलाइंस के लिए होना चाहिए। मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि एयर इंडिया के लिए ही क्यों किया है। सो ओके, ही रिलीज द वीडियो जिसमें उन्होंने वार्निंग दी है कि जो भी अगेन पीपल फ्रॉम द सिख कम्युनिटी, दे शुड नॉट फ्लाई ऑन एयर इंडिया एयरक्राफ्ट एज देयर लाइव्स कुड बी इन डेंजर। सो बेसिकली एक जो थ्रेट इशू किया गया है, दैट इज व्हाई इट इज बीन प्रोवाइडेड ओनली फॉर द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन एयर इंडिया। So secondary ladder point check के लिए this has been introduced. So clearance, security clearance from the CISF and just before boarding the aircraft ये किया जाएगा। So shutting down of schools even in Gurugram, Faridabad, Delhi NCR region में देखा जा रहा है, this is because of rising air pollution. So is it tackling or is it even mitigating or trying to prevent जो major cause of problem है behind the air pollution? मतलब एक तरीके से होगा कि आपकी हेल्थ पे ज्यादा इम्पैक्ट ना हो, बट अल्टीमेटली अगर आप स्कूल नहीं जाओगे बट स्टिल आप घर पे हो, यू विल गो आउट टू प्ले, अगर हम स्पेसिफिकली चिल्ड्रन की बात करें तो उसका इम्पैक्ट फिर भी होगा। सो हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या ले सकते हैं पोल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? एनी वन ऑफ यू कैन आंसर, मतलब क्या कर सकते हैं लॉन्ग टर्म मेजर्स में? Mansi, can you repeat your question, please? आई एम सेइंग कि स्कूल शट डाउन किए जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में बिकॉज ऑफ वर्सनिंग एयर क्वालिटी। तो क्या ये डायरेक्ट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप स्कूल्स को शट डाउन कर रहे हो कि मतलब स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट होता है, तो अगर वो बाहर ना आए इसलिए स्कूल शट डाउन किए जा रहे हैं, बट अल्टीमेटली अगर वो घर में भी रह रहे हैं या इफ दे गोइंग आउट टू प्ले, तो स्टिल इम्पैक्ट तो हो रहा है उनकी हेल्थ के ऊपर। प्लस जो कॉज है या जो प्रॉब्लम है उसको भी हम टारगेट नहीं कर रहे हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इसके पीछे क्या सोल्यूशन मेजर्स होने चाहिए जब हम एयर पोल्यूशन मिटिगेशन की भी अगर बात करें? तो मेरे हिसाब से ये कि पहली बात, ये जो स्कूल बंद किए गए हैं, दैट इज द प्रिवेंशन मेजर एज फार एज द इमीडिएट नीड्स ऑफ द पीपल बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरा ये कि अलग अलग लेवल पे, अगर हम म्यूनिसिपैलिटी से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक की बात करें, तो अलग अलग तरीके के मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिसमें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बैन कर दिया गया है फॉर अ मिनिमम पीरियड, कंस्ट्रक्शन बैन कर दी गई है इन दी सिटीज। तो बेसिकली आई थिंक प्रवेश, ये जो लॉन्ग टर्म टाइम मेजर्स पीरियड है, में लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मेजर्स मानसी, ये तो लॉन्ग टर्म अभी मेजर्स वो तो टाइम के लिए हम करते हैं बस जब एयर क्वालिटी वर्सन होता है, आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बैन कर सकते हो, बट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आप लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं बैन कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए दिक्कत है ही नहीं ना, मतलब ये एक लॉन्ग सर्टेन टर्म के पीरियड की लिए भी दिक्कत तो है। मेजर्स रिक्वायर्ड है, तभी इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे, वरना हम हर साल तो ये प्रॉब्लम देख ही रहे हैं ना। वही तो प्रॉब्लम है कि लॉन्ग टर्म हम मेजर्स नहीं ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स ले रहे हैं। जो ग्रैप हो गया वो सिर्फ विंटर सीजन में क्यों हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ ऐसे मेजर्स क्यों नहीं ले रहे जो लॉन्ग टर्म में हम लें, और प्रॉब्लम का फिर वो ऑब्वियसली ग्रेजुअली 4-5 साल के बाद उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नहीं, आई थिंक इसमें R&D प्रॉपर चल रही है, तो अभी तक जब जैसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ आता है तो वो उस लॉन्ग टर्म पे ध्यान देंगे। सो अभी आपके हिसाब से हम कोई भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कोई भी मेजर नहीं ले रहे हैं? नहीं मतलब मैंने ऐसा कहा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ हाँ, कि मैं पूछ रही एडमिनिस्ट्रेशन हूँ। हर लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन इतना ज्यादा मतलब क्लियर कट बोल देना कि हम लॉन्ग टर्म के लिए एकदम से क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी सोचो कि हाँ, तो फिर नहीं क्या है। किया जाना चाहिए लॉन्ग टर्म में, हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? कौशिक, आप ऐड कर सकते हो।
दिव्या, आपके पास कोई पॉइंट है? लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम मेजर्स की बात करें, ओके दिव्या बोलो। दिव्या, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे कोई क्यों बोल ही नहीं रहा है। तो मानसी आप बता दीजिए अगर आपके पास हो तो कुछ। मैं एक तो ये बोल रही हूँ कि हम जो अभी करंटली स्टेप ले रहे हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, हो गया ग्रीन मोबिलिटी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ही हम बात कर रहे हैं। एंड लाइक अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की भी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक बसेस हम इंट्रोड्यूस करें तो वो लॉन्ग टर्म मेजर हो गया। देन इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो लोकेटिंग इंडस्ट्रीज कहाँ पे स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल सेटअप आना चाहिए, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न हमारे लिए है। एंड वी आर आल्सो लुकिंग इनटू हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या ऐसे एलिमेंट्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दैट इज वन थिंग। तो कौशिक इज ज्वाइंड। कौशिक, देयर इज अ प्रॉब्लम। सो ये मेजर्स हम ले रहे हैं, और हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से एफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें तो मियावाकी मेथड दैट इज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, वो हम बात कर चुके हैं कि वो भी किया जाना चाहिए स्पेसिफिकली ऐसे रीजन में, लाइक मुंबई में हमने बात करी थी, या दिल्ली एनसीआर रीजन में जहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है। सो दैट कैन बी अंडरटेकन, क्योंकि मियावाकी मेथड में एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि ऑब्वियसली आपको फॉरेस्ट ग्रो करना है, तो फॉरेस्ट को ग्रो करने में इतने हजारों साल लग जाते हैं, बट मियावाकी मेथड जो टेक्निक है उसमें कंपैरेटिवली बहुत शॉर्ट टाइम में हम एक सस्टेनेबल फॉरेस्ट एनवायरनमेंट और एक बायोस्फीयर क्रिएट कर सकते हैं। यही बात मैं बोल रहा था मानसी कि ये सारे स्टेप हम ले ही रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगा आप कुछ अनकन्वेंशनल पूछ रहे नहीं, आपने मेंशन नहीं किया ना कि क्या स्टेप्स हम ले रहे हैं। आप शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से बोल रहे थे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हम बैन करें, वो सब हम ले रहे हैं, बट एक्चुअली शॉर्ट टर्म में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, सॉल्व ही नहीं हो रही है प्रॉब्लम। हर साल हमें यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सीजनली हैं। स्टेप्स लेते हैं, ग्रैब की आप बात करते हो तो वो सीजनली आता है। अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को रेगुलेट करने की बात करो तो पूरे साल होनी चाहिए ना। जो डस्ट की वजह से हो रहा है, अगर वो रेगुलेटेड तरीके से, या जो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन रहेगा उसमें हम कुछ चेंजेस लेके आएंगे, सो वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा रादर देन शॉर्ट टर्म मेजर्स। हम्म। सो व्हाई वी कैन से कि ग्राम पंचायत इलेक्शंस एंड पीरियोडिक इलेक्शंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, प्रवेश? किस कंटेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं मतलब? मैं जनरल कॉन्टेक्स्ट में पूछूं कि ग्राम पंचायत पोल्स को पीरियोडिकली करना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हम ग्राम पंचायत पोल्स नहीं करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ठीक है, तो जो भी आपकी ग्रास रूट जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी टाइमली डील नहीं होंगी। उसके बाद जो अलग अलग आप जो आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी फिजिबिलिटी ग्राम पंचायत पोल्स पे डिपेंड करती है। उसके बाद जो आपका फाइनेंस जा रहा है और जो लोकल लेवल पे डेवलपमेंट होती है, ग्रास रूट डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, वो आपके पंचायत पोल से एक तरीके से डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं पोल्स, उसमें कि किस तरीके की डेवलपमेंट हुई। दूसरा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है कि आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसा है, आप दलित को ऑप्शन मतलब अलाउ करते हैं या फिर आप वुमेन को देते हैं मौका इलेक्शन में खड़े होने का, जीतने का, और किस तरीके से फिर वो ग्राम पंचायत एक्ट करती हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। उसके बाद ये होता है कि ग्राम पंचायत के जो पोल्स होते हैं वो ये भी डिसाइडिंग फैक्टर है आज के टाइम पे कि किस तरीके से जो बाहर से लोग पढ़कर आते हैं वो भी ग्राम पंचायत में, मतलब इंडिया जो कि एस्पायरिंग टू बी अ राइजिंग पावर, किस तरीके से मतलब वो ग्रास रूट या बॉटम लेवल पर काम करना चाहते हैं ताकि बॉटम अप अप्रोच गवर्नेंस की तरफ इंडिया बढ़े। तो हम्म, दिस हेल्प से। ठीक है। सो यहाँ बेसिकली एक टर्म मैं यूज करूंगी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, सो उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा।
प्लस इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, पॉपुलेशन प्रेशर है, सो जो ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स है डायरेक्टली स्टेट लेवल पे वो इतनी क्लियरली ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी अगर ग्राम पंचायत पोल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट नहीं होंगे। दूसरा इसमें मानसी मैं एक चीज और बोलूंगा कि कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट लेड एफर्ट्स होते हैं, जैसे कि गरीब लड़कियों के सामूहिक विवाह होते हैं। अगर ग्राम पंचायत नहीं होंगी तो वो कोई नहीं करा सकता। उसके बाद रिलीजियस हार्मनी गांव लेवल पे या फिर ब्लॉक लेवल पे, जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी अलग अलग गांव में रहती है, अलग अलग कम्युनिटी रहती है, अगर पंचायत नहीं होंगी तो फ्रेटर्निटी टूट जाएगी। उसके बाद जो आपके इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे कि अ, आपके वाटर हार्वेस्टिंग के मेजर्स हैं, उसके बाद रेन हार्वेस्टिंग की बात है, पूल की बात है, विलेजेस की बात, उसके बाद एफोरेस्टेशन की बात है, एनिमल्स प्रोटेक्शन की बात है, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट मतलब प्ले रोल करते हैं सरपंच और हाँ, और अगर पंचायत। हम बिल्कुल ही जनरल आम आदमी के पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो जो लोग गांव में रहते हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट जाते हैं ग्राम पंचायत के पास जो रिप्रेजेंटेटिव है, देन हो कि उनको अपनी प्रॉब्लम कहाँ रिपोर्ट करनी है, कहाँ शेयर करनी है। सो अगर वो ही नहीं होगा तो देन अगेन ये भी एक ग्राउंड लेवल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर ऐसा मल्टीपल विलेजेस में होने लग गया तो। So यहाँ पे 50 acres of farmland wiped out in the landslips in Idukki district. So this is one of the impacts we talk about. Munnar में देखा गया, it is in Kerala. Extremely heavy rainfall was witnessed, जिसकी वजह से landslips and landslides were witnessed. So one of the preventive measures for this that we have discussed is कि we can plant trees along the roadside, specifically hilly regions में भी हम ये चीज कर सकते हैं, so that again we can prevent this as much as possible. तो net neutrality ये although हम we have लैंडस्लाइड की जैसे कि आपने अभी बात की, तो लैंडस्लाइड में आप क्या कुछ कदम उठाएंगे, मतलब क्या प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है लैंडस्लाइड को डील करने के लिए? एक मैंने बता ही दिया, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ही आप कर सकते हो, एंड दी डेवलपमेंटल मेजर्स या जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आप लेके आ रहे हो कैसी लोकेशन पे लेके आ रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली यू विल हैव टू गो फॉर डिफॉरेस्टेशन। सो प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन ना हो, कौन सी वुड बी द राइट एप्रोप्रिएट location for construction different infrastructural projects, plus that needs to be also sustainably done in terms of कि अगर आपको डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है तो जो कैंपा फंड है, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड विच इज देयर, कि अगर आप ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो तो एक डिफरेंट पर्टिकुलर रीजन पे आप प्लांटेशन ऑफ ट्रीज करोगे, बट उसके भी बहुत मतलब सेपरेट सेट ऑफ चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, बट स्टिल वी हैव दैट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसी ट्रीज ठीक प्लांट करना है। जो मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में प्रवेश, पीरियड ज्यादा हो। हेलो। बोलिए उसे। हाँ, इसमें मैं बता रहा था कि सेवरल मेजर्स कैन बी टेकन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हम्म। एग्री विथ मानसी regarding the afforestation principle. Second हम्म। would be the mapping of the landslide prone zone, and जो separate EIA method and standard can be used for the project in the landslide prone zone. हम्म। And third would be the initiative taken by the disaster management regarding the civil vigilance committee and also the first responder, so that any of the rehabilitation and resettlement can be carried out in an effective manner. तो ठीक। औषध आपने तो मेंशन किया सेपरेट ईआईए फैक्टर्स या जो रेफरेंसेस हाँ, रहते हैं फैक्टर्स के, वो जैसे क्या सेपरेट हो सकते हैं यहाँ पे, क्या जैसे डिफरेंस? ईआई जो हम लोग करते हैं वो एक जनरल ईआई है, लेकिन हम्म। हमने बात किया था कि हिमालय रीजन में अगर लैंडस्लाइड ज्यादा होता है तो वहां पे एक सेपरेट ईआई कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी या लोकल जो बिल्डिंग मटेरियल्स है वो डिफरेंट एज कम्पेयर टू प्लेन एरिया में। हम्म। तो ईआई का स्टैंडर्ड ऑन डिफरेंट होना चाहिए वहां के हिसाब से, अब मैं कि वही आप सेम पूछना चाह कंक्रीट रही मेथड, हूँ। जी। सेम, हाँ, सस्टेनेबल मोर फॉर्म ऑफ सस्टेनेबिलिटी वो प्रमोट करने के लिए। तो
तो जो इसमें बिल्डिंग दो मटेरियल चीजें चेंज होता है, ऐड कर बताइए देता हूँ। लोकल, हाँ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो इम्पैक्ट को असेस करने के लिए प्रॉपर किया जाता है, तो इसमें आप बोल रहे हो कि सेपरेटली किया जाना चाहिए। तो फैक्टर्स जो हम देखेंगे, असेस करेंगे, एनालाइज करेंगे ड्यूरिंग दिस एंटायर असेसमेंट एक्सरसाइज, वो क्या डिफरेंट हो सकते हैं, मैं वो पूछूं स्पेसिफिकली कौन से डिफरेंट फैक्टर्स फॉर आप। एग्जाम्पल आप कॉन्क्रीट, नंबर ऑफ कॉन्क्रीट यूज कर रहे हो या नंबर ऑफ ट्रीज कट कर रहे हो, दिस कैनॉट बी द सेम विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन एरिया एंड एज वेल एज इन द हिमालयन एरिया। वहाँ डिफरेंट होगा, वहाँ पर हो सकता है कि सिर्फ 3-4 ट्री को काटने से ही आपका जो सॉइल है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ग्रेविटी का इशू है। तो जो हम लोग बात किए थे पहले, ऐसे 1-2 हफ्ता पहले आया था कि सेपरेट मेजर्स फॉर द हिमालयन प्रोन रीजन और वेस्टर्न घाट का सेपरेट होना चाहिए, ईआई का स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड है ना ये कि आप इम्पैक्ट कैसे हो रहा है, तो डिफरेंट इम्पैक्ट है, हिमालय रीजन का डिफरेंट इम्पैक्ट है, वैसे ही प्लेन का डिफरेंट है, तो आई थिंक सेपरेट होना चाहिए मेरे अनुसार। तो इसमें दो चीजें मैं अलग बोलता हूँ उसे। पहला कि केमिकल एजेंट्स यूज करने चाहिए स्लोपिंग मटेरियल पर, ताकि उनकी जो ग्रेडेशन है वो ज्यादा ना हो। दूसरा, जो अंडर वाटर ड्रेनेज देखी जाती है हिली एरियाज में, वो सिस्टम से हो, और जो ड्रिलिंग होती है वो मतलब थोड़ी कम हो, कम उसका यूज हो, और प्रॉपर RFID से ये पता लगाया जा सके कि कौन से ऐसे प्रोन एरियाज हैं जहाँ पर जॉइंट्स और फिजर्स ज्यादा होते हैं, तो वहां पर टाइमली एक्शन जो है मतलब जो लोकल अथॉरिटीज है वो ले सकती हैं, ताकि लैंडस्लाइड ना हो। यहाँ पे मेरे को कंसर्न है जो आपने बोला कि केमिकल्स हम यूज कर सकते हैं, बट केमिकल्स का भी तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रहेगा ना, उसका आप क्या करोगे? ये मानते हैं, मतलब हमें कैलकुलेटिव हर जगह होके देखना पड़ता है ना, कि मतलब आप नहीं, रिस्क क्योंकि ये देखोगे केमिकल्स या फिर यूज ज्यादा करेंगे रिस्क तो देखोगे। लार्ज स्केल पे यूज होगा ना, क्योंकि एक छोटे से रीजन प्रवेश, इसमें मानसी, आई स्टैंड विद मानसी कि केमिकल आप यूज करें लार्ज स्केल, तो पहली बार क्वांटिटी का इशू होगा, कॉस्ट का इशू होगा, सेकंड थर्ड वुड लार्ज बी स्केल पे यूज नहीं करेंगे सस्टेनेबिलिटी। मुझे, मैंने पहले ही बताया कि हम ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज होते हैं जहाँ पर ज्यादा होता है, वहाँ पे बोर्ड भी लगे रहते हैं कि दिस एरिया इज प्रोन टू लैंडस्लाइड। If we know that that particular area is prone to landslide, so we can definitely use in those areas. I'm not saying कि whole state में कर दें, ऐसे prone areas में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले बार जब प्रवेश, जब आप बताएंगे इसके ऊपर, तो एक एग्जांपल लेके आना, केमिकल क्या केमिकल यूज कर सकते कौन सा ठीक, केमिकल? ठीक है। sure. हैं। थैंक यू। Okay, so Bandipur Tiger Reserve, it is there in Karnataka. So as a fact, we can take this up. So net neutrality की हम बात कर रहे थे, although मतलब क्या definition होती है, क्या idea होता है?